بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین لبیک 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 یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ابھی ایک جگہ براڈ ہو رہی تھی اور وہ براڈ کسی وجہ سے ختم ہو گئی، تو یہ میں ابھی اپنی براڈ شروع کر رہا ہوں اور اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ براڈ کو شیئر کر دیں اور ڈبل ٹیپ کیجئے گا، اور وہ زاہد گجر صاحب اگر مجھے سنیں تو آئیے جناب اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کال ڈالیے، کوئی دوست زاہد گجر صاحب تک یہ براڈ شیئر کر دے کیونکہ ان کے ساتھ ہی گفتگو ہو رہی تھی مسلم شریف کی حدیث کے اوپر۔ اور حدیث میں یہاں پہ ایک دفعہ دکھا دوں، یہ قادیانیوں کی ہی ویب سائٹ کے اوپر یہ کتاب رکھی ہوئی ہے، صحیح مسلم جلد 15 نور فاؤنڈیشن، جلد 15 نور فاؤنڈیشن، اور اس کے صفحہ نمبر 122 کے اوپر، صفحہ نمبر 122 کے اوپر یہ حدیث ہے 5214 5214 یہ حدیث ہے۔ تو اس حدیث کے اوپر ابھی گفتگو ہو رہی تھی، تو وہ پھر براڈ کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے یار، کوئی دوست یہ شیئر کر دے بھائی یہ زاہد گجر کو، قادیانی مربی کو، یا اور بھی کوئی قادیانی مربی آنا چاہتا ہے اس حدیث، پوری حدیث کے اوپر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تو اچھی خاصی گفتگو چل رہی تھی، اور آج زاہد گجر صاحب نے تسلیم کر لیا ہے کہ یہاں پہ صفحہ نمبر 125 کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ ہائی لائٹ عبارت کہ حضرت مسیح ابن مریم، یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم جب مسیح دجال کو باب لد کے اوپر پائیں گے تو اس کو قتل کر دیں گے۔ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ مسیح موعود جو ہے یہ تو پھر دو ہو گئے ہیں، ایک مسیح دجال اور ایک مسیح ابن مریم۔ موعود کا مطلب ہوتا ہے ایسا مسیح کہ جس کا وعدہ دیا گیا ہے۔ جی کاشف جٹ بھائی شکریہ۔ تو یہ مسیح تو پھر دو ہو گئے ہیں، تو انہوں نے تسلیم کر لیا کہ واقعی مسیح دجال بھی مسیح موعود ہے۔ موعود کا مطلب ہوتا ہے ایسا مسیح جس کا وعدہ دیا گیا۔ تو بہرحال اس پوری حدیث کے اوپر میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ قادیانیوں کا بڑا یہ ہوتا ہے کہ جناب آؤ قرآن سے بات کرو، حدیث سے بات کرو، تو چلیں قرآن حدیث سے ہی بات کرتے ہیں۔ ابھی تو حدیث کھلی ہوئی ہے، ساتھ قرآن بھی یہ کھولنا چاہیں گے تو قرآن بھی کھول لیں گے۔ کاشی جٹ بھائی شکریہ بھائی، شیئر کر دو اور قادیانیوں کو بلاؤ یار، کوئی ایک ادھا قادیانی آئے گا تو بات آگے بڑھے گی، بات آگے بڑھے گی۔ دعویٰ تم لوگوں کا ہے کہ قرآن سے بات کرو، حدیث سے بات کرو، تو آؤ بھائی قرآن سے بات کرتے ہیں، حدیث سے بات کر لیتے ہیں، لیکن کرو تو صحیح نا بات۔ سوال تو یہ ہے، یہاں پر دیکھیے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی 45 علامات کا ذکر ہے۔ شکریہ بھائی، 45 علامتیں اس ایک حدیث کے اندر، اور یہ وہ حدیث ہے جو قادیانی بہت زیادہ پیش کرتے ہیں، اور صرف ایک چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دفعہ نبی اللہ کہا ہے، صرف یہ بیان کرنے کے لیے اس حدیث کو بڑا پیش کریں گے، لیکن آج تک دنیا کے کسی قادیانی نے اس مکمل حدیث کو کبھی بھی پیش نہیں کیا۔ تو ہم پیش کر دیتے ہیں، کتاب بھی تمہاری ہے، تمہاری ویب سائٹ کے اوپر رکھی ہے، ترجمہ بھی تمہارا ہے،
عربی بھی تمہاری، ترجمہ بھی تمہارا، سب کچھ تمہارا، آؤ ہمارے ساتھ بات کرو، ٹھیک ہے؟ تو ابھی زبردست گفتگو جاری تھی، تو بہرحال وہ براڑ تھی ایک، اس کے اوپر میں چلا گیا، لیکن وہ بات کمپلیٹ نہیں ہو پائی، اور اس کا مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ اچھی خاصی وہ ٹرین جب ایک چل رہی ہو نا اپنے پورے کر سپیڈ کے ساتھ، تو ایک دم رکاوٹ آ جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی توڑ پھوڑ ہوتی ہے۔ تو ایک ڈیبیٹ جب چل رہی ہو پورے جوبن کے ساتھ، تو بیچ میں ایک دم رکاوٹ آ جائے تو وہ پھر جتنا نقصان ہوتا ہے اور وہ پھر ہمیں جتنا دکھ ہوتا ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یار یوسفی صاحب بلاؤ یار، وہ زاہد گجر نو ذرا شیئر کرو یار، کسی کے پاس اگر اس فالو کیا ہوا ہے کسی نے تو اس کو بلائیں، کال ڈالیں ادھر، آمنے سامنے ہوں گے تو پھر ہی ہے نا، ایسے میں یہاں پہ بیٹھ کے اکیلا ہی گفتگو کرتا رہوں گا، کوئی اتنی چس نہیں آنی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا یار وہ دل جانا ہے تو وہ پتہ نہیں انج کر کے بھی کر دینے، وہ کی چکر ہے؟ اچھا ٹھیک، کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کریں کریں کریں، انہوں پھڑو ذرا کسی طریقے، اج بالکل کنارے تے پہنچیا سی کام تے براڑ دا نیست ہو گئے۔ اچھا جی، جب دجال اپنے کرتب دکھا رہا ہوگا تو لکھا ہے صفحہ نمبر 125 کے اوپر، اتنے میں حضرت مسیح ابن مریم کو مبعوث کرے گا، یعنی اللہ مبعوث کرے گا، اور وہ سفید مینار کے پاس دمشق کے مشرقی جانب 2 زرد چادروں میں 2 فرشتوں کے بازوؤں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے اترے گا۔ میں یہ ایک دفعہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، تبصرہ اس کے اوپر بعد میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں پڑھ کے سنا دوں کہ پوری حدیث سنا دوں؟ پوری حدیث بڑا وقت لگنا ہے یار، چلو پوری حدیث سنو پھر۔ صفحہ نمبر 122 سے یہ حدیث شروع ہوتی ہے، حدیث نمبر 5214 ہے۔ حضرت نواس بن سمان بیان کرتے ہیں کہ ایک دن صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا، اور اس کے ذکر میں آواز کبھی دھیمی ہوئی اور کبھی بلند، یہاں تک کہ ہم سمجھے کہ وہ دجال قریب ہی کھجوروں کے جھنڈ میں ہے۔ جب ہم شام کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں گھبراہٹ کے آثار پہچان لیے اور فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح آپ نے دجال کا ذکر کیا تھا، کبھی آپ نے آواز دھیمی تھی کبھی بلند، ہم سمجھے کہ وہ کھجوروں کے جھنڈ میں ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے علاوہ اور امور کا تمہارے بارے میں زیادہ خوف ہے، اگر وہ میری موجودگی میں نکلے تو میں تمہاری طرف سے اس سے دلیل کے ذریعے مقابلہ کرنے والا ہوں، اور اگر وہ نکلے اور میں تم میں نہ ہوں تو ہر شخص کو خود دلیل کے ذریعے اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ یہ حدیث کے کون سے الفاظ ہیں؟ یہ ترجمہ غلط کیا ہے انہوں نے، حدیث نو بھی معاف کو نہیں کیتا قادیانیاں نے، حدیث کے الفاظ کچھ اور ہے، ترجمہ کچھ اور کر گئے۔ اور اللہ میرے بعد ہر مسلمان کا خلیفہ ہے، اور دجال جو جوان ہے، دجال کی اب علامتیں شروع ہو گئی ہیں، 15 علامتیں اللہ کے نبی نے بتائی ہیں۔ دجال جوان ہے، جوان لڑکا، جوان ہے، بہت گھنے گنگریالے بالوں والا، گھنے گنگریالے بال ہوں گے، جوان لڑکا ہوگا، گھنے گنگریالے بال ہوں گے۔ یہاں کون آیا ہس جی جناب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ جی شکر الحمدللہ۔ حسن بول رہے ہیں ملیشیا تو؟ جی پہچانا نہیں استاد جی؟ جی فرمائیں آپ۔ کچھ نہیں، بس سن رہا سی تواڈے۔ اچھا جی بہت شکریہ استاد جی، جزاک اللہ۔ اچھا سنیے، حدیث سنیے۔ حدیث وہ میں بار بار بیان کر رہا ہوں کہ جو قادیانیوں نے بیان کی ہے، قادیانیوں کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، میں وہ سنا رہا ہوں۔
अपनी तरफ से बिल्कुल कुछ नहीं, कादियानियों की बयान करदा हदीस वो सुना रहा हूं। अच्छा जी, आगे सुनिए। गुंगरियाले बाल होंगे और उसकी आंख फूली हुई है, गोया कि मैं उसे अब्दुल उज़्ज़ा बिन कुतन से तशबीह दूंगा। तुम में से जो कोई उसे पाए तो उस पर सूरतुल कहफ की इब्तदाई आयात पढ़े। यहाँ पर रात को मेरी कादियानी मुरब्बी इमरान कालू से डिबेट हुई इसी मौजू के ऊपर, तो मैंने फिर हवाले दिखाए कि मिर्ज़ा कादियानी कहता है दज्जाल नास को कहते हैं, नास तमाम इंसानों को, नास को दज्जाल, दज्जाल शैतान को कहते हैं, दज्जाल ग्रोह मुफसिदीन को कहते हैं, दज्जाल ईसाइयत का भूत है, दज्जाल पादरियों का फिरका है, दज्जाल इकबाल मंद अकवाम को कहते हैं। ये इतने 1 2 3 4 5 6 तर्जुमे उसने किए दज्जाल के। ये 6 चीजें होगा दज्जाल। ये मैंने किताबें दिखाई हैं रात को इमरान कालू को, एक जवाब नहीं था उसके पास। ये इब्ने आदम साहब की आईडी से कोई आए हैं जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी शाह जी, बयान जारी रखें। आप अहमदी हैं कि मुस्लिम हैं, कादियानी कौन है? अस्तगफिरुल्लाह वल अज़ीम। मैं ये अपनी सुन्नी हूँ। पूछा दें। अच्छा नहीं, मुझे तो नहीं सुन्नी हूँ पता, शाह जी, मुझे मैं आपका पुराना जानने वाला हूँ, कोई मसला नहीं। अच्छा ठीक जी है। जी। क्योंकि वो असल में डिबेट करने के लिए मैं बैठा हूँ ना, तो मुझे तो नहीं पता कौन आ रहा है। वो इतनी दोस्तों से वो फिर वाकफियत भी अभी नहीं हुई, तो नहीं पता चलता, तो माजरत करूँ। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, आगे जी, ये देखे वो दज्जाल के इतने माने बता रहे हैं। अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि वो एक नौजवान होगा, गुंगरियाले उसके बाल होंगे, वादे तौर पे अल्लाह के नबी बता रहे हैं। अली मूसवी, शुक्रिया भाई। तो अब आप मुझे बताइए फिर, अब्दुल उज़्ज़ा बिन कुतन से तशबीह दे रहे हैं, वो भी एक इंसान है, वो भी एक मर्द है, हजूर ने फरमाया उसकी तरह का होगा, और गुंगरियाले और आंखें उसकी फूली हुई होंगी, गोया कि उसे अब्दुल उज़्ज़ा बिन कुतन से तशबीह दूंगा। तुम में से जो कि उसे पाए तो उस पर सूरह अल कहफ की इब्तदाई आयात पढ़े। कादियानियों से यहां पे सवाल है, जैसा कि मिर्जा कादियानी ने कहा है कि दज्जाल नास को कहते हैं, तो नास को देख करके तुम सूरह कहफ की इब्तदाई आयात को पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? पहले तो पता चल जाए ना दज्जाल है केड़ी बला दा नाम है। मिर्जा कादियानी तो कहते हैं नास है, शैतान ग्रोह मुफसिदीन, ईसाइयत का भूत, पादरियों का फिरका, इकबाल मंद अकवाम। हुण ਇਹ सूरह कहफ दी आयतां सी किनू वेख के पढ़नियां ने? कादियानियों से ये सवाल है, दबो जवाब। अब मिर्जे कादियानी ने चूंकि ईसा इब्ने मरियम होने का ऐलान कर दिया था, दावा कर दिया था, रोला पड़ गया कि ईसा के साथ दज्जाल ने भी आना है। तो दज्जाल तेरा कौन सा है? तू तो कहता मैं ईसा हूं, तो दज्जाल किधर है? इसने कहा ले वेखो मैं करदा की हां। उसने फिर ये कलाबाजियां मारी, एक कलाबाजी मार के कहता जी दज्जाल से मुराद इंसान, दूजी कलाबाजी दज्जाल से मुराद शैतान, तीजी कलाबाजी दज्जाल से मुराद गुरोह मुफसिदीन, चौथी कलाबाजी दज्जाल से मुराद ईसाइयत का भूत, पंजवीं कलाबाजी दज्जाल से मुराद पादरियों का फिरका, छठवीं कलाबाजी अगे जाके कहता है दज्जाल से मुराद अकबाल मंद अकवाम है, वड्डियां कौमां, बड़ी बड़ी कौमें, इकबाल मंद अकवाम, बड़ी कौमें। और एक जगह खुद मिर्जा कादियानी कहता है मुगल जो फैमिली है, मुगल कौम जो है ना, ये इकबाल मंद कौम है, वो अपने आप को भी दज्जाल बना गए। और नास के अंदर भी वो शामिल है, हाँ नास के अंदर भी शामिल है, खुद मिर्जा कादियानी नास के अंदर शामिल है कि नहीं? ये तो नहीं है कि नास से उसको अलग कर दिया जाए। तो ये इस 2-3 हवालों से तो खुद मिर्जा कादियानी जो है वो दज्जाल साबित हो रहे हैं। इसका जवाब क्या देंगे कादियानी, बताओ कादियानी। अच्छा, जबकि मुसलमानों के नजदीक दज्जाल एक शख्स होगा
وہ مرد ہوگا. یاد رکھیے گا کوئی اور مخلوق نہیں, کوئی جن پوت نہیں ہونا, کوئی جن پوت نہیں یہ ہونا, یاد رکھیو. وہ ایک مرد ہوگا, انسان ہوگا, گنگریالے اس کے بال ہوں گے, آنکھیں اس کی پھولی ہوئی ہوں گی. یہ حضور نے فرمایا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ آگے سنیے جی. تم میں سے جو کوئی بھی اسے پائے تو اس پر سورہ الکہف کی ابتدائی آیات پڑھے. وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راہ سے نکلے گا. ہاں, علاقہ بھی دس چڑیا, شام اور عراق کے درمیان سے کسی جگہ سے اس نے نکلنا. دائیں جانب بھی فساد برپا کرے گا اور بائیں جانب بھی. پس اے اللہ کے بندو تم ثابت قدم رہنا. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمین پر کتنا عرصہ رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن. مدت بھی بتا دی, 40 دن رہے گا. یہ کیا عیسائی 40 دن ہے؟ ہاں, عیسائی یا پادری یہ 40 دن ہو گئے ان کو. بتاؤ ایک قادیانی ہو. آگے جی, وہ 40 دن کوئی دن ایک سال کے برابر ہوگا, اور کوئی دن ایک ماہ کے برابر, اور کوئی دن ایک جو ہے نا ایک ہفتے کے برابر. کوئی کی ہوں ہے وہ ترتیب وہ انج دی ہوئے گی. وہ جڑا دن ہوئے گا نا, پہلا دن وہ ہوئے گا وہ جناب ہوئے گا 40 دن کے برابر. ایک نہیں, ایک دن, پہلا دن ہوگا ایک سال کے برابر, دوسرا ایک ماہ کے برابر, اور تیسرا ایک ہفتے کے برابر, اور بقیہ سارے دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے. اب ترجمے کے اندر ڈنڈیاں ماری ہیں انہوں نے. یہ بتاؤ نا, یہ جو کوئی کیا ہے تم نے کہاں سے کیا ہے؟ حدیث کے کون سے الفاظ ہیں جس کا تم نے ترجمہ کیا؟ آؤ ادھر دسو, میں نکا دیا نہیں, ترجمہ غلط کیا ہوا ہے. وہ ایک الگ ٹاپک ہے, گرامٹیکلی ترجمے کی جانچ پڑتال کرنا. تو اس پہ گفتگو اگر کریں گے تو وہ پھر موضوع سے ہم ہٹ جائیں گے. وہ تو سامنے جب کوئی قادیانی آئے گا تو اس سے کریں گے نا. اچھا جی, آگے سارے دنوں کی طرح ہوں گے. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن جو ایک سال کی طرح ہوگا, کیا اس میں ایک دن کی نمازیں ہمارے لیے کافی ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, اس کے لیے اندازہ کر لینا. دسو ہوئے, اگر یہ عیسائی دجال تھے تو عیسائی تو خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بھی تھے, حضور کے دور مبارک میں تھے. حضور ڈائریکٹ نہ فرما دیتے کہ یہ عیسائی جو ہیں, یہ جو پادری ہیں, یہ ہے دجال. مرزا قادیانی تو کہہ رہے. اچھا جی, آپ نے فرمایا نہیں, اس کے لیے اندازہ کر لینا. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں اس کی تیز رفتاری کیسے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارش کی طرح جس کے پیچھے ہوا چل رہی ہو. پھر وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں پکارے گا تو وہ اس کی بات مان لیں گے. اس پر وہ بادلوں کو حکم دے گا تو وہ خوب بارش برسائیں گے, اور زمین کو حکم دے گا تو وہ اگائے گی. اور شام کو ان کے مویشی آئیں گے تو ان کی کوہیں پہلے سے بہت اونچی ہوں گی, اس کے تھن بھرے ہوئے ہوں گے, اور ان کی کوکھیں بھری ہوئی ہوں گی. پھر وہ یہ دیکھیں یہ سارے کام کیا ہوئے ہیں؟ ابھی تو تم نے دجال کے بارے بتایا ہی نہیں ہے کہ دجال ہے کی بلات ہے. یہ ساری گفتگو تو پھر اس کے اوپر ہوگی نا. ابھی تو کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی. دجال سے مراد ناس ہے, دجال سے مراد شیطان ہے, دجال سے مراد گروہ مفسدین ہے, دجال سے مراد عیسائیت کا بھوت ہے, دجال سے مراد پادریوں کا فرقہ ہے, دجال سے مراد اقبال مند اقوام ہے. پہلے فیصلہ تو کر لو دجال ہے کی شے وے, پھر حدیث کا اطلاق اس کے اوپر بعد میں کریں گے. یہ کون آئے ہیں جناب؟ شیر خان صاحب. السلام علیکم وعلیکم السلام. جناب مفتی صاحب بیٹھے ہیں. مفتی صاحب آپ بتائیں نا دجال ہے کیا؟ نہیں آپ نے بتانا ہے نا, میرے سے میں تو بتا رہا ہوں حدیث کے اندر سے بتا رہا ہوں. سر عالم آپ ہیں, حدیث سے بتائیں نا. میں بتا رہا ہوں حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے. میری تو جرت ہی کیا ہے جب اللہ کے نبی بتا رہے ہیں.
दो हदीस बता दें, हदीस क्या कहती है, दज्जाल क्या है, हदीस पढ़ के कितनी बताएं देर ना हो गई थोड़ी सी। आपको आए हुए ये सुनते हुए? इन्होंने ऐसे ही, मैं आया हूँ तो मैंने मुझे कितनी देर इन्होंने हुई उठा है लिया। बताएं? तकरीबन कोई 3-4 मिनट हो गए। चलो गुफ्तगू शुरू हुए कितनी देर हो गई है? 20 मिनट हो गई हैं। अब वो तो मुफ्ती सारी साहब बातें मैं फिर आपको दोबारा आपके लिए बताऊं। शार्ट सा बता जी दें। इस्लाम दज्जाल कोई लंबी स्टोरी है जो मतलब लंबी चलेगी, या थोड़ा सा शार्ट शार्ट अभी आप बता सकते हैं कि आप दज्जाल नीचे ऐसा चले जाए अभी, बैठ के सुने, वो शार्ट शार्ट है। बताते हाँ, हैं। मेरा एक मौजू अच्छा चल रहा है, मैंने उसके तहत लेके चलना है। आप नीचे चले जाए मेहरबानी कर। जी अच्छा इस्लाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। सर पहचाने? फरमाया करे, मैं किस किस को पहचानूं? मैं सबको ही पहचानता हूँ, जो हजूर के हाँ आशिक है सबको मैं पहचानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुफ्ती साहब सवाल ये है कि वो दज्जाल को ये जो बाबों के मानने वाले हैं वो कैसे पहचानेंगे, क्योंकि बाबों ने भी वो अपने मरीदों को निगाहें मार के मार दिया, कत्ल कर दिया। फिर वो उन्होंने क्या कहते हैं कि अपने मरीदों को ज़िंदा भी किया है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने रूह भी खींची है अपनी, ठीक है। उन्होंने अपने जनाजे भी खुद पढ़ाए हैं मरने के बाद। वो कैसे, जो बाबों के मानने वाले हैं वो कैसे अब दज्जाल को पहचानेंगे, जिन्होंने अपने बाबों ने जिन्होंने अपनी कौम को अपने नाम के कलमे पढ़ाए हैं? तो उसका भी जवाब देना आप। हाँ बिल्कुल ठीक है। वो ना उस तरीके से पहचानेंगे जब मरज़इयों की माँ को जिस दिन 4 शोहर मिलेंगे ना, तो उस ना टाइम ना ना पहचानेंगे। सर, इल्मी जवाब देना, इल्मी जवाब इल्मी, देना, ऐसे नहीं, भागना नहीं है। सुने तो सही ये। अच्छा, ये हाँ जी। मर्दों के लिए जन्नत में 70 उड़े हैं। मौलाना तारिक जमील साहब भी बड़े जनाब ये इसी वजह सुनाते हैं, ले लेके सुनाते हैं, और बाद लोग इस पर एतराज करते हैं, बाद लोग खुश होते हैं। अच्छा, ये अब फरहान मरजाई नु होते ले आओ जरा। पहली बात यह है कि कुरान और सुन्नत इस मसले में खामोश है। औरतों के मसले में ये औरतें भी आजाद कर कहती हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं। जी जी, औरतों को ये कहें कि हाँ, मैं जवाब देता हूँ। औरतों से ये कहें कि इंशाल्लाह आपके लिए हर वो चीज होगी जो आप ख्वाहिश करेंगे। जो कुरान हकीम में है कि जन्नती के लिए हर वो शय है जो वो ख्वाहिश करेगा। अगर किसी औरत के लिए, या वो जवाब है जो हमदी साहब ने भी दिया, मैं देता हूँ जवाब। अगर किसी औरत की ये ख्वाहिश है कि उसके लिए एक से ज्यादा मर्द हो, ठीक है, या वो एक से ज्यादा उसको भी हुरे मिले, तो अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। हाँ, वो इस तरह कर सकता है कि उसको जन्नत में मर्द बना दे और उसको हुरे दे दे। हाँ, जिस दिन वो जन्नत में आप की वालदा को अल्लाह बनाएगा ना मर्द, और मर्द बना के, क्योंकि उन्होंने ख्वाहिश की होनी है 4 शोहरों की, तो उनको अल्लाह फिर जब 4 शोहर देगा, यानी 4 हूरें देगा, तो उस दिन पहचान लेंगे। जी जहान देव साहब। हाँ तो आपको क्या कोई शक है अल्लाह पाक कादिर नहीं है? हाँ ठीक है, आपकी वालदा को 4 शोहर मिलेंगे ना, आपको कोई शक तो नहीं है? 4 शोहर नहीं मिलेंगे, 4 हुरें मिलेंगी, इसका पूरे तो मिलेंगे, यानी आपकी हाँ वालदा को अल्लाह शोहर बना देगा, मर्द बना देगा, ऐसे ही है? बिल्कुल अल्लाह पाक कादिर है। ठीक हो गया। तो वो फिर मिल ये गया। होगा कि जब आपकी वालदा शोहर बनी होगी तो आपके वालिद का गेम डालने को दिल करेगा, तो वो फिर वो सारा अल्लाह के पास मामलात हैं, वो तो अल्लाह जानता है ना। आपके बाप का दिल करता है गेम डालने को, जिमा करने को, तो वो अब क्या वो हम जिन्स परस्ती करेगा वहां पे? ना 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 सर, वो तो अल्लाह पाक के पास हल होगा इसका, उसका भी हल होगा। वो क्या होगा? हाँ जी, वो क्या होगा? वो तो मैं कैसे जानता हूँ, ये आप जानते हैं, ये वो जब तो अल्लाह को आप पता है ना। जानते हैं कि आपकी वालदा को फिर शोहर बनाएगा, शोहर बना के 4 हूरों देगा, ये सब कुछ आप देखे ना, जानते हैं ना? वो ऐसे ही है। मेरी बात वो सब सुने, वो जानते हैं ना आप? अच्छा मेरी भी सुने ना। उसने सवाल किया है, उसने जवाब नहीं, दिया इतना तो अपने जानते तरीके हैं ना से। आप, गल मुक हाँ। गई है साडी। इतना तो हाँ आप जी। जानते हैं कि नहीं? आपकी जी वालदा बिल्कुल ऐसा ही है, इसके बाद ठीक और क्या हल होगा? ठीक हो, आपकी वालदा मर्द बन गई, ये सब कुछ आप जानते हैं। ये नहीं आप जानते कि आपके बाप का जब गेम करने को दिल करेगा वो किसके साथ गेम बजाएगा? तो अल्लाह पाक फिर दोबारा मैं औरत बना देगा। इसमें 1 मिनट एक सेकंड लगेगा ना, वो उसमें क्या है? आपको कोई शक है? हंस रहे हैं यार, क्या बात है, क्या बात है मुफ्ती ठीक साहब। है, बहरहाल चलो चुप करके सुनो, हाँ ਐਵੇਂ जी। ਹੁਟਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੁੱਪ ਟੁਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਜਿਸ ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਡੀ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਣਗੇ ਦਜਾਲ ਨੂੰ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਨੱਸੇ ਜੇ। ਤੇ ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਨਾ ਨਾ, ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੀ ਨੱਸੇ ਕਿਉਂ ਜੇ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨੱਸੇ ਕਿਉਂ? ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਤਾ ਸਵਾਲ। ਯਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਦਾਂ ਨਸੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਜੀ ਠੋਕਣ ਦਾ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਣ ਦਾ ਦਿਨ। ਮੰਜੀ ਕਿਹੜੀ ਠੋਕ ਗਈ? हुआ चाहता है कादियानियों की मंजी ठुकने का, तो वक्त की गल है ना, थोड़ा चुप करके साथ लईदा हुंदा। ਨੱਸ ਗਏ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਸ ਇਹੀ ਕੰਮ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਅਸਲ ਚ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਐ ਲੋ ਐ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਜਾਣ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ। ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੱਸਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। राजेश साहब, मैंने एक बात करनी है, मुफ्ती साहब से एक बात कर। मुफ्ती साहब, आप मुझे मॉडरेटर बना सकते हैं? नीचे लोग गालियां गलत मैसेज देखने में उसको गालियों का हल मेरे पास है, वो बिल्कुल ना, गालियों वालों को म्यूट नहीं करना, छोड़ दें। म्यूट नहीं, कुछ भी नहीं, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। करने दे नहीं कोई नहीं, हल है मेरे पास। जानते सब सुनो, चुप करके सुनीदा ਹੁੰਦਾ ਐ, ਐਵੇਂ ਹੁਸਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਰਾਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ? ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਜੀ ਠੋਕ, ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਣਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਦਰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ? ਕਿਉਂ ਮਰੋੜ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਨ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਿਉਂ ਕਾਦੀਆਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸਵਾਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਛਾਣਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਠੋਕਣਾ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਏ ਪਈ? ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਹੋ ਆਪਸ ਚ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀਨੀਅਰ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਫਾਲੋਅਰ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹਨਾਂ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ। नहीं करीदा, बीबे बच्चे बन जाओ, इंज ना करया करो। ओके हो गया, नहीं करते सवाल। अच्छा जी, एक माह के बराबर और कोई दिन एक हफ्ते के बराबर, बाकी सारे तुम्हारे दिनों की तरह होंगे। हमने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दिन जो एक साल की तरह होगा, क्या इसमें एक दिन की नमाजें हमारे लिए काफी होंगी? हुए हुए साल पूरे दा एक दिन होना है, तो दसो कादियानियों, और दसो कादियानियों केड़ा दिन आया सी साल दा, और केड़ा दिन आया सी पूरे महीने दा, केड़ा दिन आया सी पूरे हफ्ते दा? अच्छा, फरमाया नहीं, इसके लिए अंदाजा कर लेना। हमने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमीन में इसकी तेज रफ्तारी कैसी होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बारिश की तरह जिसके पीछे हवा चल रही होगी। फिर वो एक कौम के पास आएगा, इन्हें पुकारेगा तो उसकी बात मान लेंगे, फिर इस पर वो बादलों को हुक्म देगा तो वो खूब बारिश बरसाएंगे, और ज़मीन को हुक्म देगा तो वो उगाएगी, और शाम को इनके मवेशी आएंगे तो इनकी कुहाने पहले से बहुत ऊंची होंगी, इसके थन भरे हुए होंगे, इनकी कोखें बरी होंगी। फिर वो एक और कौम को बुलाएगा और इसकी बात को रद्द कर देंगे, और वो इनके पास से चला जाएगा तो वो कहत में मुब्तला हो जाएंगे, और इनके हाथों में इनके मालों में से कुछ ना रहेगा, और दज्जाल वीराने से गुजरेगा तो उसे कहेगा कि अपने खजाने निकाल दे। इस वीराने के खजाने इस तरह इसके पीछे चल पड़ेंगे जैसे शहद की नर मक्खियाँ। फिर वो एक भरपूर जवान आदमी के बुलाएगा, उसे तलवार से मारेगा और उसके 2 टुकड़े कर देगा निशाने पर मारने की तरह। फिर उसे पुकारेगा तो वो रोशन चेहरे के साथ हंसता हुआ आएगा। इतने में अल्लाह मसीह इब्ने मरियम को मबूस करेगा। अब ये 15 अलामतें दज्जाल की, मसीह दज्जाल, मसीह मऊद दज्जाल, मसीह मऊद दज्जाल की 15 अलामतें बयान हुई हैं मसीह मऊद दज्जाल की। अब मसीह मऊद ईसा इब्ने मरियम की 45 अलामतों का जिक्र होगा। तो मसीह मऊद कितने हो गए? 2। एक मसीह मऊद दज्जाल, एक मसीह मऊद ईसा इब्ने मरियम। यानी मसीह मऊद का मतलब होता है ऐसा मसीह जिसका वादा दिया गया। तो वादा तो 2 मसीहों का है, एक मसीह का तो नहीं है। वादा तो 2 मसीहों का है, एक मसीह मऊद दज्जाल है,
ایک مسیح موعود عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ اب دیکھ لیں کہ مرزا قادیانی کو یہ لوگ مسیح موعود کہتے ہیں، تو آیا کیا وہ عیسیٰ ابن مریم ہے؟ کیا اس کا نام عیسیٰ ہے؟ کیا اس کی والدہ کا نام مریم ہے؟ اور یہ ساری علامتیں ابھی جو ذکر ہوں گی، وہ علامتیں کیا مرزا قادیانی کے اندر پائی جاتی ہیں؟ اگر تو مرزا قادیانی عیسیٰ ابن مریم ہے اور اس کے اندر یہ ساری علامتیں پائی جاتی ہیں، تو ٹھیک ہے، وہ والا یہ پھر مسیح موعود بنے گا، مسیح موعود عیسیٰ ابن مریم۔ لیکن اگر یہ علامتیں نہیں پائی جاتی تو یقینی سی بات ہے بقول قادیانیوں کے وہ مسیح موعود دجال بنے گا، پیچھے بچتی یہ ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب سنیں جی، اچھا ضیاء رسول بھی آ گیا ہے۔ ضیاء رسول تم ہی ہو؟ جی جی میں ہی ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ کون آئے ہیں؟ یہ نئی آئی ڈی ہیں۔ السلام علیکم دانا صاحب جی جی قبلہ کیسے ہیں آپ؟ جی شکر ہے، تھوڑا سا اونچا بولنا پڑے گا جی۔ جی قبلہ کنٹینیو کریں مجید ٹھکوین کی، بس ہم سن رہے ہیں بیٹھ کے۔ اچھا سننا ہی ہے آپ نے صرف؟ جی قبلہ سن آپ رہے پھر ہیں نیچے چلے جائیں، نیچے چلے جی، جائیں، جزاک کیونکہ اللہ کال جیسے کے اوپر تو صرف ان کو لیتے ہیں ہم کہ جن سے ہم نے گفتگو کرنی ہوتی ہے، تو بصورت دیگر دوستوں کا یہاں پہ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا۔ اچھا جی آگے سنیں جی، کہتے ہیں اتنے میں مسیح ابن مریم کو مبعوث کرے گا تو وہ سفید مینار کے پاس دمشق کی مشرقی جانب دو زرد، یہ کون آئے ہیں؟ محمد علی صاحب جی السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام شاہ جی وہ میں نے آپ نے جو اس دن وہ دیا تھا الفجر اخبار کا 1 جنوری 1916 کا جو شمارہ تھا، جس میں وہ حوالہ دیا گیا تھا کہ مسیح موعود عین محمد است، ٹھیک ہے، جس کی وہ ہیڈنگ اوپر دی گئی تھی، تو شاہ جی یہ میں اس کو سرچ کر رہا تھا تو وہ سرچ انجن میں مل نہیں تھا رہا، تو ذرا اس کے تھوڑا بتا دیں پلیز، وہ تھوڑا سا میں نے آن لائن وہ یہ اخبار ہے جی، الفضل اخبار، 1 جنوری 1916 کا شمارہ ہے الفضل، اور اس کا صفحہ نمبر 7 ہے، یہ صفحہ نمبر جی 7 اور 8 پہ، اور یہ اوپر لکھا ہوا ہے مسیح موعود محمد۔ یہ پورا مضمون ہے جس میں انہوں نے 2 صفحے ہیں، یہ اگلا صفحہ بھی ہے، 2 صفحہ 7 اور 8 کے اوپر یہ ٹھوک جا کے ثابت کیا ہے کہ مرزا قادیانی ہی محمد ہے، اصلی ہاں جی محمد، اصلی نقلی استعارہ کے رنگ میں، تمثیلی، مجازی، غیر حقیقی، غیر شرعی، وہ نہیں، حقیقی اصلی عین محمد است۔ یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے کہا تھا کہ محمد دنیا میں 2 دفعہ آئیں گے، ایک محمد 1200 سال پہلے آئے، وہی محمد اب 1200 سال بعد آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ قادیانی عقیدہ ہے، یاد رکھیے گا۔ جی اچھا بالکل، میں نے یہ موضوع آگے چلا لوں پھر؟ یار کون کالر اٹھا رہا ہے؟ تو یہ نیچے کالر اٹھائیں، کون ہے؟ محمد علی اگر بات ہو گئی ہو تو پھر آپ نیچے چلے جائیں، ٹھیک ہے استاد سے 1-2 نشست خالی رہنی چاہیے۔ جی ندیم صاحب، جی ندیم صاحب، اور اسی طرح یہ جو رد قادیانیت پہ آپ کام کر رہے ہیں کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں ہمت، طاقت، توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک بات کرنے لگا ہوں، یہ مرزا قادیانی کا معاملہ یہاں سے بھی یہ تو ختم ہو جاتا ہے کہ وہ 40 سال کی حکومت کا معاملہ تھا، اس کے بعد دجال نے آنا ہے، تو یہ تو دجال بھی نہیں ابھی تک آیا۔ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ دجال بنے گا، دجال والا بھی اس میں کوئی وہ نہیں رہا معاملہ بننے والا۔ جی بالکل ٹھیک ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں نا، رتی برابر بھی حقیقت نہیں، یہ صرف ایک حدیث کے تحت ہی نہیں، کسی دنیا کے کسی ایک معاملے میں بھی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کسی ایک معاملے میں بھی۔ ہاں سچائی نام کی اس کے اندر کوئی رتی نہیں ہے۔ یہ عقل کے اندھوں کو ابھی بھی اس چیز کی سمجھ نہیں آتی، ابھی بھی اس کو مسیح موعود بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی مثل کے طور پہ، کبھی وہ کس طرح، یہ کیوں انہیں ابھی تک عقل نہیں آ رہی؟ ایک عام بندہ اس چیز کو سمجھ سکتا ہے۔ آ جائے گی عقل، یہ براڈیں جب ہم بار بار کریں گے نا سب عقل انشاءاللہ ختم نبوت زندہ باد۔ اگر مطلب کوئی حقیقت ہے تمہارے اندر، آؤ سامنے آ کے بات کرو، بے شک نہیں بات کرو گے تو ہم اپنی براڈیں کرتے رہیں گے، لوگوں کو تعلیم دیں گے، لوگوں کو آگہی دیں گے، لوگوں کو اویئرنس ملے گی،
लोग जागेंगे, लोगों को समझ आएगी। हाँ जी ठीक है मुफ्ती साहब, शुक्रिया, थैंक यू। बस यही सवाल था मेरा, मैं नीचे जा रहा हूँ। जी, बेहतर हो गया। अच्छा जी, मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। इस हदीस पे रात को मैंने लताड़ दिया है आजम सैफी को भी और 2-3 और को भी। मेरा इनके साथ मुनाजरा हुआ 2-2.5 घंटे का। कलबाजियां मार रहे थे इधर उधर, ये फलान ढमकान, ये हदीस ना इस पे जो आप अभी पढ़ रही भाई हैं। इत्थों ही बयान करनी जे कादियानियां दी। ओ बिल्कुल मैं इत्थे ही रगड़िया उन्हां नू। कादियानियां दी किताब जो लिया रही है हदीस, ये अपनी कोई नहीं पेश कर, अपनी नहीं पेश कर। ओ मैं कर रहा मुनाजरा, मेरा आजम सैफी नाल हो गया, रगड़ देता हूं कल मैं। हाँ माइक म्यूट करो। ये कादियानियों की वेबसाइट के ऊपर रखी हुई है भाई, ये तर्जुमा कादियानियों का किया हुआ है। हाँ, कादियानियों का तर्जुमा किया हुआ है। और अभी मैं सफा नंबर, ये जिल्द 15 के सफा 125 के ऊपर पहुंचा। अच्छा जी, फिर वो मसीह दज्जाल को तलाश करेंगे यहां तक कि उसे बाबे लुद पर पालेगा और उसे कत्ल कर देगा। जब यहां पर पहुंचते ना कादियानी, पहले तो ऊपर 2 जर्द चादरों की मैं बात कर लूं। 2 जर्द चादरें, उसकी तवील मिर्जा कादियानी ये करता है 2 जर्द चादरों से मुराद मेरी 2 मरज है असल में। वो देखो ना, ख्वाब के अंदर अगर कोई जर्द चादर देखे या जर्द रंग देखे तो उसकी ताबीर ये होती है कि मर्ज इसको वो ख्वाब बना दिया उसने। अच्छा ठीक है, तो उससे मुराद मेरे असल में 2 मरज हैं। एक जिस्म के ऊपर वाले हिस्से का मरज कि मुझे पागलपनी के, पागलों की तरह मराकी दौरे पड़ते हैं, हिस्टेरिया के दौरे पड़ते हैं। तो नीचे वाली मेरी बीमारी है, मेरे जिस्म के नीचे वाले हिस्से में जो जर्द चादर है वो ये है कि जनाब दिन और रात में 100 दफा टट्टी मुंह उतर आता है। कर लो गल। अच्छा जी, अच्छा बकाया सब चीजों को वो छोड़ गए है ना, वो खा पी गए ना कि सफेद मीनारा, जामे दमिश्क, उसका मशरकी मीनारा, 2 फरिश्ते भी खा गए, उनके कंधों के ऊपर हाथ रखे हुए वो भी खा गए, उतरेंगे इसको भी खा गए, सर झुकाए हुए होंगे उसको भी खा गए, पानी के कतरे टपक रहे होंगे उसको भी खा गए, वो सांस लेंगे तो काफर मर जाएंगे, इसको भी खा पी गए। अच्छा, फिर बाबे लुद पे जब पहुंचते हैं ना तो कहता है वो असल में ना लुद से मुराद है लुधियाना। अच्छा जी, लुधियाना लुद है। और वहां पे क्या हुआ है, तूने मसीह दज्जाल को कत्ल कर दिया। कहने लगा आहो आहो, मैं उत्थे जेड़ा वे उत्थे मुनाजरा कीता है ईसाइयां दे नाल ते मैं ते ईसाइयत खत्म कर दी है। जबकि मिर्जा कादियानी के से लेकर के हत्ता के उसके अपने मुरीद ईसाई हो गए थे। और जिस बंदे ने, ये वाला बंदा जो था, ये शोलातुन नार मकबरा खान यार मौलवी अब्दुल्ला वकील, ये जिसने आके खबर दी थी कि कश्मीर के अंदर वो एक कब्र है कि जिनके बारे में है कि वो किसी बनी इसराइल के किसी नबी की कब्र है, लोग ऐसे कहते हैं। और मिर्जा कादियानी ने उसको बना दिया कि ये ईसा की कब्र है। फिर इसने मौलवी अब्दुल वकील ने ये रिसाला पूरा लिखा। उसने कहा मैंने कुछ और कहा है तुझे, तूने मशहूर कुछ और कर दिया है। और ये बंदा पहले मिर्जा कादियानी के ऊपर ईमान लाया था, बाद में उसको छोड़ गया। ये रिसाला उसने फिर लिखा। उसने कहा मैंने तुझे ये कहा है कि भाई लोग वैसे कहते हैं कि ये जो ढेरी है, ये जो कब्र है, ये बनी इसराइल के किसी नबी की है। तो लोगों के अंदर मशहूर हो जाती होती हैं ऐसी बातें, वो कई जगह पे मशहूर है। समझ आई कि नहीं? अब मेरे यकीन जाने यहाँ घर के करीब एक छोटी सी ढेरी है और उसके ऊपर एक वो दरख्त बड़ा सा लगा है,
बेरी है शायद, बेरी, और उसके पास एक नलका है और वहाँ पे लोग आके नहाते हैं और वो समझते हैं कि खारिश के मरज हमें लोग बना लेते होते हैं चीजें इस किस्म की। तो अब इस कब्र को उसका पता कोई भी नहीं ये है किसकी। मैंने बड़ा पता करने की कोशिश की इस बंदे का नाम क्या था, ये बुजुर्ग क्या नाम है इनका, कोई नहीं। उसको किसी की तरफ मंसूब कर दो, क्या मसला है, कोई टेंशन है, मंसूब करनी है ना, कर दो किसी की तरफ का। हुआ ये था कि उसके अपने बंदे इसको छोड़ छोड़ के ईसाई हो रहे थे, कोई बहाई हो रहे थे, एथीइस्ट तो अभी भी हो रहे हैं। और यहां बात यहां से चली थी कि बाबे लुद के ऊपर कहता है ईसाइयों को मैंने खत्म कर दिया। ईसाई तो तेरे बात तो ईसाइयत बड़ी है, जाओ जाके फिगर देख लो। मिर्जा कादियानी के बाद ईसाइयत दुनिया के अंदर कितनी आम हुई है, गूगल के ऊपर जाके सर्च कर ले। दुनिया का सबसे बड़ा मजहब वो बन गए। वो कह रहा है मैंने ईसाइयत को खत्म ही कर दी है। जैसे मिर्जा जूनियर जेल में भी यही कहता है ना, द डैमेज हैज बीन डन। मिर्जा कादियानी भी यही कहता था, द डैमेज हैज बीन डन, मैंने खत्म कर दी है, फिरकों की दुकानें बंद कर दी हैं, इन मजाहब को खत्म कर दी है। मिर्जा जूनियर भी यही कह रहा है। वो दुकाना उंजी खुली गया है और दरबार भी उंजी चल रहे थे, फिरके भी उंजी चल रहे थे, मदरसे भी उंजी चल रहे थे। द डैमेज हैज बीन डन हो चुका है। ये असल में दोनों मिर्जों का ये वड्डी वड्डी छोड़ा करते थे, वड्डी वड्डी छोड़ा करते थे, ये पकड़ी नहीं जाती थी। अच्छा जी आगे फिर मसीह दज्जाल को तलाश करेंगे यहाँ तक कि उसे बाबेलोद पर पालेगा और उसे कत्ल कर देगा। फिर ईसा इब्न मरियम के पास एक कौम आएगी जिन्हें अल्लाह ने इस दज्जाल से महफूज रखा था। वो ईसा इब्न मरियम इनके चेहरों पर हाथ फेरेंगे और इन्हें जन्नत में इनके दर्जे बताएंगे। आप यह हदीस सुनते रहिए और गौर करिएगा मिर्ज़ा कादियानी ने किस चीज के ऊपर अमल की है, कौन सी चीज, कौन सी अलामत के उसके अंदर पाई गई। मैं सिर्फ पढ़ूंगा। वो इस हालत में होंगे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही करेगा कि मैंने अपने कुछ, ये है वो वही, ये थी वो वही अल्लाह के नबी ने जो पहले ही बता दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर वही होगी। ये वो वाली वही है जिसका पहले ही हजूर ने बता दिया हुआ है। वो वही क्या है कि मैंने अपने कुछ ऐसे बंदे निकाले हैं जिनसे लड़ने की किसी की ताब नहीं, बस मेरे बंदों को तूर की तरफ ले जाओ। बस ये है वो वही जिसका जिक्र खुद हजूर ने बता दिया हुआ है कि ये वाली वही आनी है ईसा अलैहिस्सलाम के पास। और मिर्ज़ा कादियानी ने तो पूरी, ये देखें पूरी किताब, ये देखें ये तज़किरा कितनी मोटी किताब है। ये सब मिर्ज़ा कादियानी की वहियों का मजमूआ है। ये इतनी वहियां तो नहीं, वो सिर्फ ये वाली वही थी जिसका जिक्र पहले हो चुका है कि मैं याजूजो मजूज को निकालने लगा हूं, तुम अपने बंदों को लेकर तूर की तरफ चले जाओ, इनसे लड़ने की तुम्हारी ताकत नहीं है। बस ये वो अल्फाज हजूर ने बता दिए हुए। वही का दरवाजा तो बंद हो गया, वही का दरवाजा बंद हो गया। अब और कोई वही नहीं आनी, जो वही आनी थी वो पहले हजूर ने बता दी हुई है। वही का दरवाजा बंद। अच्छा जी आगे, बस मेरे बंदों को तूर की तरफ ले जाओ, फिर अल्लाह याजूजो मजूज को भेजेगा। वो हर बुलंदी को फैलांगते हुए आएंगे। इनका पहला हर अव्वल दस्ता बुहेरा तबरिया से गुजरेगा, जो इसमें होगा पी जाएंगे, और उनका आखिरी दस्ता गुजरेगा तो कहेगा यहाँ कभी पानी नहीं था। अल्लाह के नबी ईसा और इनके साथियों को महसूर कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि इनसे एक के लिए बैल का सर आज तक में से किसी एक के लिए 100 दिनार से बेहतर होगा। और पता नहीं की तर्जमा किया है, तुम खा देनी हो, मर जाओ। फिर अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी खुदा की तरफ तवज्जो करेंगे तो अल्लाह इन यजूज मजूज की गर्दनों में एक कीड़ा भेजेगा, एक आदमी के मरने की तरह
मरने की तरह सब हलाक हो जाएंगे। एक आदमी के मरने की तरह सब हलाक हो जाएंगे, यह कितना तर्जुमा कर छड़े। अच्छा चलो, एक आदमी के मरने की तरह सब हलाक हो जाएंगे। फिर अल्लाह के नबी ईसा और उनके साथी ज़मीन पर उतरेंगे तो ज़मीन में एक बालिश्त भर जगह भी इनकी चर्बी और तवाफ़ुन से खाली ना पाएंगे। फिर अल्लाह के नबी ईसा और उनके साथी अल्लाह की तरफ तवज्जो करेंगे तो अल्लाह परिंदों को भेज देगा जो बख्ती ऊँटों की गर्दनों की तरह होंगे और इनकी लाशें उठाकर वहाँ फेंकेंगे जहाँ अल्लाह चाहेगा। फिर अल्लाह बारिश भेजेगा जिससे खाको खश्त का घर या खैमा नहीं बचाएगा। फिर ज़मीन को दो डालेगा यहाँ तक कि उसे आईने की तरह कर देगा। फिर ज़मीन से कहा जाएगा अपना फल उगा और अपनी बरकत लुटा। इस दिन एक अनार सारा ग्रोह खाएगा और उसके छिलके से साया लेंगे और दूध में बरकत दी जाएगी, हत्ता कि दूध वाली ऊँटनी एक बड़े ग्रोह को किफ़ायत करेगी और एक दूध वाली गाय एक कबीले को किफ़ायत करेगी। एक दूध वाली बकरी का दूध एक ख़ानदान को किफ़ायत करेगा। इसी दौरान अल्लाह एक खुशगवार हवा भेजेगा जो हर मुसलमान के पहलू को लगेगी और हर मुसलमान और मोमन की रूह कब्ज़ कर लेगी और सिर्फ शरीर लोग रह जाएंगे जो गधों की तरह लड़ाई फसाद करेंगे और इन पर वो घड़ी आएगी। सफ़ा नंबर 127 के ऊपर आ गए हम। एक रिवायत में है कि लक़द काना भी हाज़ ही मर्रतन माउन के बाद ये मज़ीद है कि फिर वो चलेंगे यहाँ तक कि जाबालुल खम्र पर जाकर जो बैतुल मक़दस का पहाड़ है रुक जाएंगे और कहेंगे कि जो कोई ज़मीन में है हम इसे कत्ल कर चुके हैं, आओ हम इन्हें कत्ल करें जो आसमान में हैं। फिर वो अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे तो अल्लाह इनकी तरफ इनके तीर लुटा देगा जो खून आलूद होंगे। एक और रिवायत में है कद अखरज तू इबादन ली ला यदानी ली आहदिन बि कितालिहिम की बजाय कद अनजल तू इबादन ली ला यदई ली आहदिन बि कितालिहिम के अल्फाज हैं, यानी मैंने अपने ऐसे बंदों को उतारा है जिनसे लड़ने की किसी में ताब नहीं। ये हदीस आपने सुन ली है। अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं जी। शार्प शूटर भाई, अल्लाह अकबर, मौजूद हो? हसन इकबाल साहब जी हजरत साहब, जी मौजूद हूँ जी। हदीस जी जी समझ आई? एक मिनट, आवाज मेरी डबलिंग हो रही, मैं दोबारा आंदा, एक मिनट, 1 मिनट से। अच्छा जी, बहरहाल ये आपने हदीस सुन ली और कादियानियों से हम ये बार बार इस हदीस के मतलब पूछेंगे और ये हवाला मैंने बार बार आपको दिया है। कल भी जो गुफ्तगू हुई थी और आज की गुफ्तगू ये मैं दोनों मिला के अपने यूट्यूब के चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर अपलोड कर दूंगा। तो वो ये कल जो कमी रह गई थी वो आज पूरी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि अभी और कोई कॉलर भी नहीं है कि जिसके साथ गुफ्तगू की जाए, नहीं तो कोई कादियानी आता तो उससे हम फिर बात करते। नवीद भाई कोई बात कहनी है तो कह लें, नहीं तो फिर ब्राड में ख़त्म करता हूँ। ये याद रखिएगा तमाम दोस्तों ने कि इस हदीस के बारे में आप लोगों ने इनसे पूछना है, लाजमी पूछना है। अच्छा यहाँ पर यार मुझे ऐलान याद आ गए, बहुत से लोगों को नहीं पता कि हमारा जो ख़ानदानी शोबा है वो हिकमत है। हिकमत डॉक्टर हमारे ख़ानदान में पाए जाते हैं। मेरे वालिद गिरामी भी हकीम है, मेरे 2-3 भाई हकीम है। मैं खुद ज़ाती तौर पे तकरीबन 10 साल 12 साल मैंने क्लिनिक की है और इस्लामी दुआ खाने के नाम से, लेकिन वो फिर जब ख़त्म नबूवत का काम बढ़ा तो मैंने वो फिर सब कुछ छोड़ दिया
क्योंकि दुआइयाँ वगैरह बनाने में वो वक्त लगता है, और मेरा सारा वक्त उधर क्लिनिक पे लग जाता था। तो वो फिर मैंने उसको छोड़ दिया कि अब तहकीक और तखरीज का काम ज़्यादा हैवी है, इसको बड़ी तवज्जो से करना पड़ता है, एक एक हवाला निकालने के लिए बड़ा वक्त लगता है। तो बहरहाल वालदे ग्रामी ने अभी बड़ा असरार किया है कि तू ये हमारा चूँकि ख़ानदानी शोबा है, तू क्यों नहीं कर रहा। तो वालदे ग्रामी के असरार के ऊपर मैंने दोबारा ये क्लिनिक खोल ली है इस्लामी दुआखाना के नाम से। तो इसका अब तरीका कार ये है, बाकायदा कोई मैं दुकान तो नहीं करूँगा, इतना वक्त भी नहीं मेरे पास। इसको सोशलाइज्ड कर रहा हूँ मैं, मतलब व्हाट्सएप के ऊपर आप हजरात को कोई मर्ज हो तो आप फ़ोन के ऊपर डिस्कस करके आप दवाई ले सकते हैं। अमूमी तौर पे जो हमारे पास इलाज होता है ना, वो होता है दर्दों का, जोड़ों के दर्द। तो जोड़ों के दर्द का इलाज ज़बरदस्त आप राब्ता कर सकते हैं। असाबी कमज़ोरी है, मर्दो ज़न के जो मखसूस अमराज हैं इनके मुतल्लक, तो बहरहाल आप राब्ता कर सकते हैं। ये एक छोटा सा ऐलान था, और कई दोस्त वो फिर व्हाट्सएप के ऊपर भी मैंने स्टेटस लगाया तो मैसेज कर रहे थे, शाजिया की काम शुरू करते हैं। अब मैं उनको क्या बताऊं जी, क्या शुरू कर दिया भाई, आप जानते नहीं है मेरे मुतल्लक, तो मैं आपको क्या बताऊं, मेरा ये ख़ानदानी शोबा है, तो कोई हमने हराम काम तो नहीं शुरू किया, हलाल रोज़गार है वही शुरू किया है ना। तो बहरहाल ये ऐलान था। तो रब रखा जी, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नई डिबेट के साथ और नए मौजू के साथ और नए प्लेटफार्म के ऊपर इंशाल्लाह मिलते हैं। हमारा यूट्यूब का चैनल है ख़त्म नबूवत टाइम्स, जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, क्योंकि अच्छा यूट्यूब पे होता ये है कि बसा औकात जो 2 3 4 ब्राडों के ऊपर गुफ्तगू ही होती है, उनको मैं एक जगह पे कर देता हूँ, समझे कि नहीं। अब जैसे वो अभी थोड़ी देर पहले एक जगह पे गुफ्तगू हो रही थी, अब उसको भी मैं बीच में लगाऊंगा। जो कल वाली गुफ्तगू हुई थी, इमरान कालू के साथ मुनाजरा हुआ था, उसको भी मैं लगाऊंगा। तो ये तरीकाकार है ना जी कि यूट्यूब के बड़े फायदे। तो यूट्यूब का एक तो हमारा चैनल है ख़त्म नबूवत टाइम्स, और दूसरा चैनल है मुफ्ती मुबशर शाह। तो मुफ्ती मुबशर शाह जो चैनल है उसके ऊपर तो जो ओरिजिनल वीडियो जब वो हम अपलोड करते हैं, जबकि ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर एडिटिंग के साथ अपलोड करते हैं, ठीक है। तो दोनों चैनल्स के ऊपर अलग अलग हम करते हैं। और जामिया ख़त्म नबूवत का पैगाम वो भी आप लोगों के लिए हमने दिया हुआ है, उसकी तरफ तवज्जो रखनी है भाई, खसूसी तवज्जो। जामिया ख़त्म नबूवत बनाना है इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल, खसूसी सारे दोस्त तवज्जो दीजिए। शार्प शूटर भाई टुर गए हो कि है वो गायब हो गए। चलो भाई रब रखा जी, फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।